In this video, we start Unit 3rd Rheology, Physical Pharmaceutics 2, Semester 4 B Pharm. Rheology is study of flow properties. Rheology term coined by Bingham and Crawford. We will study in this about liquids, solids, semi-solids. Rheology of liquids is viscosity. Rheology of solids is elasticity. Rheology of semi-solid is viscoelasticity. Apart from viscosity, tackiness or stickiness, body slip, and spreadability are other rheological properties. Now we will do Newton's law of viscosity. In this, Newton's law of viscosity, F is directly proportional to G. F is shear stress and G is shear strain. F is equal to eta G, where eta is equal to viscosity or dynamic viscosity or coefficient of viscosity. Eta is equal to F by G. Here is the body which moves with the velocity dv and covers the area A with the distance dr, and we apply force F on that body, and force is equal to F dash upon A, and G is equal to dv by dr. F dash is the force that we applied, A is the surface area. dv by dr is also known as the velocity gradient. Here we plot this graph by taking F on the y-axis and G on the x-axis. We will see this F by G graph is a straight line passing through origin with positive slope. This means F is directly proportional to G, and this slope gives us viscosity, resistance to flow. This graph is also known as rheogram, flow curve or consistence curve. And next, if we plot the graph by taking G on y-axis and F on x-axis, this gives the straight line slope but gives fluidity. Fluidity is reciprocal of viscosity. Bodies which obey this law, Newton's law of viscosity, are known as Newtonian bodies. Bodies which obey this law means to say Newton's law of viscosity, is called as Newtonian bodies. Viscosity value of fluids at 20 डिग्री सेल्सियस. कैस्टर ऑयल की विस्कोसिटी है 1000 मिलीपास्कल और सेंटीपोइस. These are the units of viscosity. ग्लिसरीन की 400 मेगापास्कल और सेंटीपोइस. ऑलिव ऑयल की विस्कोसिटी है 100 मिलीपास्कल और सेंटीपोइस. इथेनॉल की है 1.19, वाटर की है 1.06, क्लोरोफॉर्म की 0.56. Now we will come with the units of viscosity. Units of viscosity. There are two units in our syllabus, SI units और CGS units. विस्कोसिटी की SI units पॉइजली भी हो सकती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स सेकेंड भी हो सकते हैं, पास्कल सेकेंड भी हो सकती है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. एंड CGS units may be poise, dyne centimeter square inverse seconds, gram centimeter inverse second inverse. Now we know that we have already read about this, that F is equal to F डैश अपॉन ए. जो बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई की थी दैट इज F डैश. कितने एरिया उसने कवर किया है? ए. तो F डैश अपॉन ए. F डैश मीन्स फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर. सो इसकी यूनिट्स बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर. स्क्वायर इनवर्स तो G की क्या होती है? dv बाई डी आर. हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोला था dv बाई डी आर को. तो dv भी क्या होती है? वेलोसिटी. वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे लिख दिया हमने मीटर सेकेंड इनवर्स. और डी आर एक क्या हो गया? डिस्टेंस.
जो कितना होता है मीटर में, तो हमने क्या लिख दिया, सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट आ गई। अब नाउ ईटा, ईटा इज व्हाट, ईटा इज अ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज इक्वल टू F by G and units of F is, F यहाँ पे हो गया shear stress और G हो गया shear strain। viscosity is equal to shear stress upon shear strain F by G। F की यूनिट्स हमने यहाँ पे ऊपर निकाल ही ली हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, एंड जो इसकी निकालेंगे G की स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो अगर हम इनकी यूनिट देखें तो क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स सेकेंड्स। और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यू नो, एंड फोर्स की यूनिट्स होती है न्यूटन। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की होगी किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होगी मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। तो अगर इनकी यूनिट्स आप देखोगे तो ये हो गया, इसकी यूनिट्स आ गई किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नाउ डायमेंशंस ऑफ viscosity, m l minus 1 t minus 1। so we will here note that कि इसकी यूनिट्स कैसे निकालनी है, ये आपको पता चल गया अभी। नाउ अभी नोट सेंटीपॉइज, दिस इज अ वेरी मस्ट नोट फॉर यू। सेंटीपॉइज, सेंटीपॉइज इज नॉट द सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, सीजीएस यूनिट इसकी पॉइज ही रहेगी, सेंटीपॉइज इसकी यूनिट नहीं है। सेंटीपॉइज is not the CGS unit of viscosity. 1 poise is equal to 100 centipoise. 1 centipoise is equal to 1 megapascal second. And we know 1 megapascal second is equal to 1 centipoise, and that we have done here also viscosity, जहाँ पे हम ऊपर देख चुके हैं विस्कोसिटी की वैल्यूज़, यहाँ पे भी हमने देखा है। इसमें हम मेगा पास्कल सेकेंड लिख सकते हैं और सेंटीपॉइज लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 1 सेंटीपॉइज इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल सेकेंड। ओके, एंड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में रेन इज नोन एज अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ब्रिटेन में रेन क्या है, विस्कोसिटी की यूनिट है। अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कितने टाइप्स की होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, रिलेटिव विस्कोसिटी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, reduced viscosity, intrinsic viscosity, inherent viscosity. We will discuss all these one by one. First, kinematic viscosity. Kinematic viscosity is the ratio of liquid and its density. किसकी रेशियो होती है, विस्कोसिटी की और उसकी डेंसिटी की। किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी की रेशियो एंड उसकी डेंसिटी, उसकी रेशियो क्या कहते हैं हम, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती हैं, विस्कोसिटी की हमने की थी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और डेंसिटी की क्या होगी, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। तो इसकी ओवरऑल यूनिट्स क्या आ गई, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे भी नोट है अभी, सेंटीपॉइज इज नॉट द सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट सेंटीस्टोक्स है जो, सेंटीस्टोक्स इज नॉट द सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यहाँ पे स्टोक्स इसकी सीजीएस यूनिट होगी, सेंटीस्टोक्स नहीं होगी। स्टोक्स क्या होगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट, सेंटीस्टोक नहीं होगी। 1 स्टोक इज इक्वल टू 100 सेंटीस्टोक। Now second is relative viscosity. It is a ratio of viscosity of dispersion and medium. Eta R is relative viscosity, is dispersion, viscosity of dispersion, and eta naught is viscosity of dispersion medium. These are unitless and dimensionless. Now we will do one numerical. Suppose 2 gram is added to water, 2% acacia is added to water. Water has viscosity of 1 centipoise and acacia dispersion so formed has viscosity of 2 centipoise. Find relative viscosity. Eta R is equal to eta D by eta naught. Eta R यहाँ पे relative viscosity हो गया, हमने relative viscosity find out करनी है। और relative viscosity क्या होती है, viscosity of dispersion
एंड विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव विस्कोसिटी। अब यहाँ पे हमें डिस्पर्जन कितना दिया हुआ है, मतलब विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन कितनी दी हुई है 2, एंड विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम कितना दिया हुआ है 1। तो हमने क्या निकाल लिया, रिलेटिव विस्कोसिटी। अब यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है अकेशिया डिस्पर्जन, सो फॉर्म डिस्पर्जन की कितनी दी हुई है 2 सेंटीपॉइस, एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वाटर मतलब डिस्पर्जन मीडियम की, डिस्पर्जन मीडियम के 1 सेंटीपॉइस। तो ये निकाल लिया हमने 2/1, तो इसका 2 आ गया। इसको हम विस्कोसिटी रेशियो भी बोलते हैं। रिलेटिव विस्कोसिटी इज ऑल्सो नोन एज विस्कोसिटी रेशियो is always greater than form because viscosity of dispersion is more than viscosity of dispersion medium. Third is the specific viscosity. Specific viscosity is a ratio of increase in viscosity to original viscosity. कितना इंक्रीज हुआ विस्कोसिटी में, उसकी रेशियो टू द ओरिजिनल विस्कोसिटी कितनी थी। ओके, and this is a eta sp is the specific viscosity, eta d is the viscosity of dispersion, eta naught is viscosity of dispersion medium। ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। और यहाँ पे देखो अगर हम इनको ईटा डी बाई ईटा नॉट माइनस ईटा नॉट बाई ईटा नॉट कर लें, तो ईटा नॉट और ईटा नॉट तो आपस में कैंसिल हो गए, तो इसका तो 1 आ गया। और ईटा डी बाई ईटा नॉट हमने पढ़ा ही है क्या होता है, रिलेटिव विस्कोसिटी। तो हमने ये क्या रिलेशन बना लिया, ईटा स्पेसिफिक और ईटा स्पेसिफिक विस्कोसिटी और रिलेटिव विस्कोसिटी में ये रिलेशन है, ईटा एस बी इज इक्वल टू ईटा आर माइनस 1। इसको हम स्पेसिफिक विस्कोसिटी को विस्कोसिटी रेशियो इंक्रीमेंट भी बोलते हैं। नाउ फोर्थ वन इज रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक विस्कोसिटी ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन। ईटा रिड्यूस्ड, यहाँ पे ईटा रिड्यूस्ड क्या है, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। reduced viscosity is equal to the specific viscosity and concentration ratio। reduced viscosity को हम क्या बोलते हैं, viscosity number और Schrodinger's viscosity number। fifth one is the intrinsic viscosity। intrinsic viscosity is reduced viscosity at zero concentration। obtain intrinsic viscosity कैसे obtain होती है, by plotting eta reduced versus concentration graph to zero concentration। It is utilized in Markovnikov's equation, which is used to determine molecular weight of the polymers। यहाँ पे eta is equal to km की पार अल्फ़ा। यहाँ पे अगर आप प्लॉट करोगे ग्राफ को, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपने ईटा रिड्यूस लेना है ना, एक्स एक्सिस पे आपने कॉन्सेंट्रेशन ले लेना है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से ग्राफ जाएगा, जिसको जो आपको यहाँ से मिलेगा दैट इज़ एन। एन इज़ व्हाट, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग विस्कोसिटी नंबर और क्रैमर्स विस्कोसिटी। inherent viscosity, inherent viscosity is the ratio of natural log of relative viscosity and concentration। ये क्या है, inherent viscosity। okay, now what factors affecting the viscosity, there are two types of factors which affect on the viscosity are intrinsic factors and extrinsic factors। first we will do about intrinsic factors। intrinsic factors के अंदर आएगा molecular weight, shape, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। मॉलिकुलर वेट, हाई मॉलिकुलर वेट होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जिसमें लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का वेट ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। और जिस लिक्विड में शेप ज़्यादा होगी, इर्रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोवाइड मोर विस्कोसिटी देन स्फेरिकल शेप्ड मॉलिक्यूल्स। स्फेरिकल शेप्ड मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी कम होगी, जो इर्रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। इंटरमॉलिकुलर बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर बॉन्डिंग interaction leads to high viscosity। now there is extrinsic factors। extrinsic factors
Here are temperature, pressure, added substances. First, we will start with the temperature. Viscosity of gases इंक्रीज विद टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे विस्कोसिटी है जो गैसेस की वो भी इंक्रीज होती जाएगी. एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे विस्कोसिटी लिक्विड्स की वो भी टेम्परेचर के साथ कम होती जाएगी. प्रेशर, इंक्रीज्ड प्रेशर. अगर आपने प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो लीड्स टू इन्हांस्ड कोहेसिव फोर्सेस. कोहेसिव फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी ज़्यादा हो जाएंगी और क्या करेंगी, विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देंगी. नाउ थर्ड इज एडेड सब्सटेंसेस. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक अल्कोहल, ग्लिसरीन, सुक्रोज, तीनों ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सॉल्यूशन की विस्कोसिटी को. पॉलीमर्स जर्नली इन्हांस द विस्कोसिटी ऑफ वाटर. पॉलीमर्स तो विस्कोसिटी को इन्हांस ही करते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज viscosity. This is a major point that strong electrolytes decrease viscosity. And this is all about the Newtonian fluids. Now in the next video we will cover about the non-Newtonian fluids. Here we only discuss the Newtonian fluids. Thank you.